Okay, Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to this webinar session. Today, the topic of a discussion is comprehending REIT as a new paradigm. This is architect and the project manager Sabah Beg. I'm currently working as a visiting faculty therapist. Uh, Choosing the topic today was because I think it's really important for the project managers to keep an eye on the changing trends as REIT is a new paradigm which impacts the overall management strategy for the project. Understanding a new trend, its benefits and constraints will make them more prepared to face the upcoming challenges in the ever-growing world. Now, coming on to what is REIT, I think I won't interrupt the curiosity by telling you anything about REIT, but someone I think uh, when when I talk about REIT, I couldn't think of anyone more relevant than a person who has successfully launched South Asia's first listed REIT fund, and he is none other but the CEO of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited, Mr. Mohammed Ijaz. Assalamu alaikum, sir. I Alaikum. Thank welcome you you. to the session. Thank you so much for taking out time. I think it's over to you now. Please give your introduction and start it on it. Do I have to give my introduction? Or you have already introduced? Yeah. Yes, sir. I think that won't be enough. Thank you. Thank you so much. It's truly a privilege to be here. Although it would have been much better if we had met in person, and I had seen your students as well. Nevertheless, uh, as you mentioned, I work with Arif Habib Dolmen REIT Management, and we were fortunate to be the first one who were able to introduce listed REITs in South Asia with the name of Dolmen City REIT. Prior to joining the REIT management company, I used to be a banker by profession. I studied, I did my graduation in computer science from ICS, FAST, and my master's in MBA, I mean MBA from IBA. And then I worked with few banks like American Express and Emirates and Faisal. I also worked for a short stint with Anglo Chemical as well. And in 2008, I joined Arif Habib Group, and I was the founding CEO for the REIT management company. In 2014, Dolmen Group joined us, and our company became a joint venture, a 50-50 joint venture between Arif Habib Group and Dolmen Group. Um, uh, that's briefly. Um, Okay, sir. I mean, Please, if you can share. yes, sir. I'll start with the presentation. Thank you. Is this Can you run it in the presentation mode? okay, sir? Oh, thank you. We'll take that too. Uh, can I also uh, can I also move forward backward, or you have to switch slides? No, I'll switch slides. You just let Oh, me know thank when. you. Can we move on, please? Thank you. Yeah. Thank you. This is about the real estate sector. If I may ask, the participants here on the webinar, they are actually students of Zabist, of Yes. Management Sciences Group, right? Yes. Okay. So in case you find something repetitive or redundant, please do let me know. And what is the time slot that we have? So it's 40 minutes, but you can 30 take minutes. more. That's enough. That's enough. So real estate sector, Pakistan's perspective. If you can move on, please. Yes. Uh, as you know, construction or the housing sector, it holds the promise to address our pressing economic challenges. It is the largest employment provider after agriculture, especially for low-level unskilled labor. It is obviously a huge source of revenue. It is one of those mother industries, as they say.
uh, because once it triggers activities into almost 40 or as many sectors as you want to say, 40 or 60 sectors in the economy. In developed world, construction and housing, it contributes a significant portion to GDP, but in Pakistan it only contributes 2% of GDP only. If we can move forward, please. Yes. Thank you. Thank you. That's the summary. If you look at this column, Pakistan contributes only 2%, whereas countries like the US and UK, the contribution is as high as 10%. Even in India, contribution of construction sector to GDP is almost three times to what it is in Pakistan. Please. One reason why Pakistan's construction sector has not been able to flourish is actually the funding starvation. As they say, any business grows as it is financed. Uh, so in Pakistan, mortgage debt to GDP ratio is the lowest in the world. I think the only country that comes behind us is either Congo or Afghanistan. So even India, debt to GDP is mortgage debt to GDP is five times of Pakistan. In China, it is 15%. In US, it is 70%. So actually, it is the mother industry. If you look at construction, then fields related to construction like real estate marketing, the lawyers, the accountants, the engineers, architects, so on and so forth. In the banking industry, for example, a large part of the activity revolves around housing. Mortgage finance is a big number, 70% of GDP. And then these mortgage finance are securitized, so investment banking comes into play. All those houses and activities are insured, so insurance sector comes into play. So there's a huge contribution of this sector to the economy. आगे चलेंगे. Yes. Thank you. Because of this capital starvation, we are faced with acute shortage of housing. Pakistan's housing inventory has increased at a cumulative growth rate of 1.48% only, whereas the housing backlog has increased at 4.20%. So annual production is around 300 homes, and annual demand is approximately 700,000. So every year we are contributing, we are adding into this in this backlog. So clearing the backlog in 10 years would need annual investment of $20 billion. यानी अगर हम लोग हाउसिंग पे फोकस कर लें तो हम ये भूल जाएंगे सीपेक वीपेक सब कुछ. It is such a huge area and potential. आगे चलेंगे. And because of a shortage of housing, एक तो हमारी living जो है वो suffocated है. Number of persons per room average is 3, और इसके serious social impacts भी हैं. अब पता नहीं क्या, मैं यानी कि मेरी फैमिली का एक पार्ट जो है बड़ा वो पंजाब में रहता है. सो अक्सर वहाँ से मेहमान आए रहते हैं हमारे यहाँ. तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर इनके पास घर हो तो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी ज़रा डिफरेंट हो सकती है. And other countries like Turkey, it's 1.3, and then UK, it's only half a person per room. आगे चलेंगे. हम लोग इंडिया से भी एक्चुअली ज़्यादा हैं. इंडिया ऑल बहुत कंजेस्टेड लगता है. सॉरी, ये मुझे हैरानी हुई सुन के आपकी बात कि हम इंडिया से भी ज़्यादा कंजेस्टेड लिविंग में रह रहे हैं. जबकि जितना हम देखते हैं उससे तो हमें लगता है कि इंडिया हमसे ज्यादा जी बिल्कुल. लाइफ में कहते हैं कि देयर आर फ्यू अनकॉन्ट्रोवर्शियल ट्रूथ्स. उनमें से एक ये भी है कि रियल एस्टेट इज अ सिक्योर्ड एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू. किसी से पूछें वो ये बोलेगा. बट इट इज इनएक्सेसिबल टू अ कॉमन मैन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लिक्विडिटी. आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों में रुपए चाहिए होते हैं मिनिमम. एंड वंस यू गेट इन्वेस्टेड आप फंस जाते हैं. अगर आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट किया और अब आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो आप 2 लाख रुपए जनरेट नहीं कर सकते. आप या तो 50 लाख को बेचने का इंतजार करें और इसका कोई तरीका नहीं है.
तो दो बड़े इश्यूज हैं रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में कि बहुत से पैसे चाहिए और ये इलिक्विड होते हैं। सो इसको एड्रेस करने के लिए रीट का इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुआ। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। सो रीट का इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या है कि पैसे को पूल किया जाए फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट। आपकी नॉलेज में होगा कि ये जो मनी मैटर्स हैं, दीज आर हाईली regulated businesses. So Yes. either banks can pool money or mutual funds can pool money. But both of these institutions cannot invest in real estate. इसलिए कि real estate is illiquid by nature. So REITs, real estate investment trusts, are those mutual funds which allow you to pool money that you can only invest into real estate. So specialized, regulated corporate structure है जिसमें आप अपने पैसे को पूल करें और वो उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। आगे चलेंगे। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप अभी कर जी। लूँ या एंड करूँ अपने क्वेश्चन? As you feel comfortable. सर एक जैसे ये रीट की टर्म बाकी जगहों पे तो काफी अरसे से थी, पाकिस्तान में एक नया है। जी। बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते, तो इसकी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब आई मीन इस टर्म को पहले आपके तमाम लोग पब्लिक समझे तो वो समझे तो फिर सोचेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी तो Yeah. इतने लोगों को पता ही नहीं है, इवन प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता। यू आर सो राइट। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी के मैं आपसे चैलेंजेस पूछूं, उनमें से एक बड़ा चैलेंज जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज है। यानी लोगों के पास, जिनके पास आइडियाज हैं, उनको पैसे नहीं मिलते। और पैसे क्यों नहीं मिलते? बिकॉज पैसे देने के लिए है नहीं, पूल नहीं है। सो पूल करने के दो एवेन्यूज हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक्स। इसके अलावा एवेन्यूज नहीं है इनको पूल करने के। सर और सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया। वो ये है कि लोगों को नॉलेज भी नहीं है, जिनके पास पैसे भी होते जी, हैं और वो उनको पता ही नहीं होता कि बिल्कुल। हमें कहाँ जाना है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो है नैरो बेस का। पाकिस्तान की जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 2 लाख इन्वेस्टर हैं टोटल, या 2.5 लाख। अब 20 करोड़ की आबादी में 2.5 लाख इन्वेस्टर इज एक्चुअली मीन जीरो। और उन 2.5 लाख में जो एक्टिव इन्वेस्टर होंगे, मेरा अपना ख्याल है कि वो 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी तो सब बिल्कुल डॉर्मेंट और लेजी इन्वेस्टर्स हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। सो इसी वजह से लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा और वो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। अब इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही, उसकी चैलेंजेस हैं। यानी एक तो बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे आपने मुझे बुला लिया तो मैं ज़ाबिस्ट आ गया, वरना मुझे पता भी है कि ज़ाबिस्ट है, पर फिर भी मैंने स्ट्रगल नहीं किया कि मैं उनको जाके एक्सप्लेन करूं। और ना मैंने कभी एफर्ट किया कि मैं इसकी वेबसाइट बनाऊं और उस वेबसाइट को एक्टिव करूं। सो यू नो व्हाट आई मीन, देयर आई इज नो समथिंग lethargy on the part of the participants as well. सर, और ऐसा दूसरा है कि इससे कोई रेगुलेशन। बेनिफिट नहीं है, इससे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं आ रहा होता, इस वजह से मे बी हम लोग इस तरह से अप्रोच उसमें नहीं एक करते और भी हो। इशू है, उसमें एक और भी इशू है कि हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट बैठा हुआ है विच इज़ अ माइंडसेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन। यानी मैं जो भी बात कहूँगा लोग समझते हैं इसका कोई एंगल होगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू मार्केट रीट्स, so we cannot do that without SECP's permission. So once we prepared a presentation and we presented it to SCP that we want to present it to the public, so SCP ने कहा, because you are also an investor, you cannot do that. So you should hire an outside agency and they should propagate. I said, how can someone else can promote my idea or my product? So ये हम रेगुलेटरी भी तौर पे भी कुछ जरा फंसे फंसे से रहते हैं। बट मेरा ख्याल है कि उसकी बड़ी वजह लिथार्जी ऑन द पार्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आगे आएंगे हम। बिल्कुल ठीक है। There's the history. REITs were created on September 14th, 1960, and the objective was, जैसे सेट के इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में दो चैलेंजेस हैं। ज़्यादा पैसे चाहिए और वंस यू हैव द मनी यू गेट इन्वेस्टेड, इट गेट्स इलिक्विड। सो आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसमें छोटा इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सके। तो उसके लिए उन्होंने रीट्स क्रिएट किए यूएस ने सितंबर 14th 1960। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि जो हमने अपनी रीट की एप्लीकेशन फाइल की थी टू एसईसीपी,
वो भी सितंबर 14 को फाइल की थी। सो वी कैन से कि Wow. इसका कोई हमारे रीट से कोई ताल्लुक है सितंबर 14 का। आगे चलेंगे। बिल्कुल sir. That's the chronology of REITs। 60s में यूएस में आई, 69 यूरोपियन में आई, 70 में अब न्यूयॉर्क में कितना लिस्ट हुआ, 93 में कैनेडियन रीट्स आए, फिर सिंगापुर में 99 में आए, जापान में 2001 में आए, फ्रांस में 2003, मलेशिया में 2005 में, इसी तरह सो एंड सो फोर्थ। और रीट की जो मार्केट है अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये कोई $2 ट्रिलियन की मार्केट है ग्लोबली। उसमें से आधी यूएस में है और बाकी जो है जो बड़ी मार्केट्स हैं उसमें कनाडा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर इज़ द बिग रीट्स मार्केट इनमें एक्टिव है। यूएई में रीट्स आए हैं 2014 में हमारे बाद, और इंडिया में रीट रेगुलेशन तो आए थे 2014 में, बट लास्ट ईयर उन्होंने रीट इंट्रोड्यूस कराए हैं 2018 में। उनके यहाँ भी एक रीट आ गई है, Okay. rather 2019 में पहली रीट आई है, सॉरी। So these are the 40 countries where REITs are operative. आगे चलेंगे। REITs span across several property types, यानी कि those businesses जिसमें real estate एक integral component है, offices, retail, hospitality, residential, healthcare, industrial, logistics, तो वहाँ का जो real estate part है वो एक specialized business बन गया है कि कहाँ पर क्या चीज़ बनाया जाए। तो स्पेशलाइज्ड रीट्स बन रहे हैं, गेमिंग रीट्स बन रहे हैं, एंटरटेनमेंट, सिनेमास, थीम पार्क्स, डेटा सेंटर्स इज अ बिग रियल एस्टेट डिमांड दिस डेज, उसके रीट्स बन रहे हैं। इवन प्रिजन का भी रीट है यूएस में, बिकॉज सरकार के पास पैसे नहीं है कि प्रिजन बना के चलाए, तो प्राइवेट सेक्टर ने प्रिजन बनाया है जिसको वो सरकार को रेंट आउट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रीट्स हैं, कम्युनिकेशन टावर्स की रीट है यूएस में। स्टूडेंट हाउसिंग और सीनियर हाउसिंग एक बड़ा बिजनेस है यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, वो रीट्स के स्ट्रक्चर में हो रहे हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो 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 रीट्स में ऑपरेट कर रहे हैं। आगे चलेंगे। पाकिस्तान में रीट्स आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर रीट रेगुलेशंस 2015 एंड दीज वर अमेंडेड इन 2018। प्रिंसिपल फोकस जो है रीट रेगुलेशन का वो है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ जनरल इन्वेस्टर्स। हमारी जितनी भी आप एसएससीपी के रेगुलेशन देखेंगे उसमें ये एम्फेसिस होता है कि छोटे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इस वक्त एज वी स्पीक 7 रीट लाइसेंसेस इशू हुए हैं। आरिफ हबीब डॉलमेन है, एकेडी है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज टावर्स है, एसबी ग्लोबल है, टीपीएल रीट है, वेरिटास, मैग्नस, और डॉल्मेन सिटी रीट जो है दैट्स द ओनली रीट that has come into been able to come into existence in Pakistan. आगे चलेंगे। सर इसके आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा और अगर आप रीड को समझा दें, लाइक थोड़ा सा और उसको ब्रेक डाउन करके कि किस तरीके व्हाट इज रीड, रीड होता क्या है। रीट आप म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। म्यूचुअल फंड ये है कि हम लोग म्यूचुअली अपनी सेविंग्स को एक पूल ऑफ फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक पूल बन जाता है। उस पूल बनाने का और उस पूल को रन करने का एक मैकेनिज्म है, उसके लिए एक रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में होता है। पाकिस्तान में आप फंड्स को पूल करते हैं, एक तो बैंक्स के पास जाते हैं, आप अपने पैसे लेके बैंक में जमा करा देते हैं, आप डिपॉजिटर बन जाते हैं, बैंक उसको पूल कर लेता है, बैंक उस पैसे को यूज़ करता है, तो वो बैंकिंग रेगुलेशंस के अंडर में आता है। सो वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है जो उसको रेगुलेट कर रहा है, और स्टेट बैंक है जो उसको सुपरवाइज कर रहा है। सर उससे जो भी रीड के अंदर जिन्होंने फंड किया होता है उनको प्रॉफिट या लॉस किस जी, हिसाब से होता है, किस उसमें तरीके से ये है उसको। कि जैसे अभी इस वक्त कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ बैठे हुए हैं? सर अभी मेरे 40+ स्टूडेंट्स हैं सो मेरी हम क्लास 40 में। प्लस लोग हम 40 प्लस लोग से कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको ये 4 मिलियन की एक प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। अब हम में से किसी, हम सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं, किसी के पास भी 40 लाख रुपए नहीं है, तो हम 40 लोगों ने 1-1 लाख रुपया पूल कर लिया।
अब ये पूल हमको किसी रेगुलेशन के अंडर में करना है, तो वो रेगुलेशन जो है वो रीट रेगुलेशन है जो इसको गवर्न कर रही है। सो वो लाइसेंस देती है कुछ कंपनीज को कि आप ऐसा एक पूल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसने हमें लाइसेंस दिया, उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें एक लाइसेंस्ड एंटिटी बनना है विद एसईसीपी, और वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहलाती है। तो हमें लाइसेंस मिलता है कि हम आप 40 लोगों से रब्ता करें और आपसे बोलें कि आप 1-1 लाख रुपया पूल में डाल दें, तो हम 40 लाख रुपए जमा कर लिए। वो 40 लाख रुपए जो हैं वो किसी एक के कंट्रोल में होने चाहिए। वो हम 40 में से कोई नहीं हो सकता, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। वो ट्रस्टी कौन हो सकता है, ये भी रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि इट कैन ईदर बी अ AA रेटेड बैंक और इट कैन बी द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। तो हम उस ट्रस्टी को ये 40 लाख रुपए देते हैं कि आप ये अकाउंट को कंट्रोल करेंगे जैसे हम आपसे कहेंगे उस तरह। सो वो 40 लाख रुपए ट्रस्टी के कंट्रोल में चले जाते हैं, इसीलिए ये ट्रस्ट बन जाता है। फिर रीट मैनेजमेंट कंपनी ने बताया कि ये एक प्रॉपर्टी है ए, ये 40 लाख रुपए की है, तो हम लोग 40 लाख रुपए से ये प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम 40 लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी से हमको हर महीने 40 रुपए का रेंट आता है। तो वो रेंट जो है वो सब लोगों को 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ट्रस्टी की जॉब है कि वो 40 लोगों को 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वो सब बेनिफिशियरी हो गए। अब फर्ज किया कि 1 साल के बाद ये 40 लाख की जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू हो गई 80 लाख रुपए, और मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक यूनिट बेच दूं। तो मैं जब बेचने जाऊंगा तो उसकी मैं मार्केट वैल्यू देखी, वो 80 लाख रुपए है। तो मेरे यूनिट की वैल्यू जो मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो 2 लाख रुपए हो गई है। तो जो एक यूनिट है मेरा वो ऑफर फॉर सेल पे आ जाएगा। हम इस रीट को लिस्ट कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जहां लिखा होता है कि 40 यूनिट है और उस यूनिट की जो वैल्यू है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू वहां आ जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे। वो आ रही है 80 लाख रुपए, जिसका मतलब है कि एक यूनिट 2 लाख रुपए का है। तो मैं स्क्रीन पे जाके लिखता हूं कि मैं अपना एक यूनिट बेचना चाहता हूं। तो उसमें जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो भी उस स्क्रीन को देख रहे होंगे, वो बिड करेंगे। सो कोई बोलेगा कि मैं इसको 1.25 रुपए में खरीदता हूँ, तो किसी ने बोला मैं 2 रुपए में खरीदता हूँ, किसी ने बोला मैं 2.25 में खरीदता हूँ, तो मैं अपना यूनिट उसको दे दूंगा और वो मेरे पास मेरा कैश जनरेट हो जाएगा। ये तो हमने एक एक यूनिट की बात कर लिया। अब फर्ज किया कि हमारा यूनिट जो है वो 1000 रुपए का था, तो हमें 1 लाख के बदले में 100 यूनिट मिले थे। तो मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए थे, तो मैं 2 यूनिट बेच के अपनी लिक्विडिटी जनरेट कर लूंगा। दैट्स हाउ ये म्यूचुअल फंड की तरह बिल्कुल ऑपरेट करता है। ओनली लिमिटेशन इज कि रीट कैन ओनली इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं दे कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। वो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स और इन बॉन्ड्स, दे कैन ओनली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सो जो सर रियल एस्टेट है वो मिलके हम खरीद लेते हैं। वो आप आगे जाएंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा, तो आई ठीक शैल है, एक्सप्लेन फर्दर। बिल्कुल आगे चलते हैं। काफी अच्छा समझ में आ गया सारे बच्चों को, क्योंकि हर बंदा एक जगह पे नहीं खड़ा होता। बहुत लोगों को रियल एस्टेट से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, तो या उनके लिए समझना मुश्किल था। आपने आई थिंक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आई कैन अंडरस्टैंड, सॉरी। हम आगे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये मजीद आई होप कि क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये बेसिक स्ट्रक्चर आप देखें दोबारा। इसमें पहले आप देखें कि इसमें आइटम्स क्या क्या हैं। ये जो मैं कर्सर चला रहा हूँ ये आपको नजर आ रहा है? नहीं सर, अब उनको नजर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वो मेरे पास अच्छा, शेयर है। ओके। सबसे देखें पहले लेफ्ट से शुरू होते हैं तो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते हैं, विच मीन्स के इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं जो इन्वेस्ट कर सकती हैं। वो जो भी पैसे इन्वेस्ट करती हैं वो एक ट्रस्टी के पास चले जाते हैं, वहां पे वो पूल हो जाते हैं। और वो ट्रस्टी जो है वो एक ट्रस्ट डीड के बेसिस पे काम कर रहा होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये पूल ऑफ फंड्स कैसे ऑपरेट होगा, वो ट्रस्ट डीड के तहत लिखा हुआ है। सो वो रीट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने ये ट्रस्ट बनाया है। वो इंस्ट्रक्शंस देती है ट्रस्टी को कि आपको क्या करना है, और वो बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, वो अपॉइंटमेंट्स करती है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करती है,
वो एससीसीपी को रिपोर्ट करती है, वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब उसको किस किस को अपॉइंट करना है, तो उसने एक शरिया एडवाइजर अपॉइंट करना है अगर ये शरिया कंप्लायंट रीट है, टू मेक श्योर के तमाम एक्शंस, तमाम टास्क वो शरिया कंप्लायंट है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होनी होती है एवरी 6 मंथ्स। जो हम सब ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीद ली है, वो सब लोग जानना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। सो प्रोफेशनल वैल्यूएशन बॉडीज हैं और वैल्यूएशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एवरी 6 मंथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। फिर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना होता है। जैसे डॉलमेन का प्रोजेक्ट आप देखें तो उसका एक प्रॉपर्टी मैनेजर है, उसकी जॉब है कि वो प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस को मेक श्योर करे, उसकी क्लेनलीनेस को मेक श्योर करे, उसकी सेफ्टी को मेक श्योर करे, उसको रेंट आउट करे जो जगह खाली हो जाए, जिनको रेंट पे दे दी है उनसे किराया वसूल करे, बिजली का, पानी का, गैस के बिल्स टाइम पे करे, गवर्नमेंट के टैक्सेस टाइम पे करे, और प्रोमोट करे प्रॉपर्टी को ताकि लोग उसको विजिट करें, ताकि लोग वहां पे अपना बिजनेस करने के लिए आए। ये सारे काम जो हैं ये प्रॉपर्टी मैनेजर को करने। तो ठीक है ये एक सर। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने अपॉइंट किया। फिर जितने अकाउंट्स बन जाते हैं उन अकाउंट्स का ऑडिट करवाना, सो दैट इन्वेस्टर्स नो कि एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन 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 फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द रीट। तो उसका पीरियोडिक ऑडिट होता है, एनुअल और डिटेल्ड ऑडिट होता है, और एवरी 6 मंथ उसका रिव्यू होता है। फिर उसमें रेटिंग होती है। सो रेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व है, जो मैनेजमेंट क्वालिटी को रेट करती है और रीट की एबिलिटी को रेट करती है कि वो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर कर पाएगी या नहीं। क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी ले रहे थे तो रीट मैनेजमेंट कंपनी ने सारे इन्वेस्टर्स को बताया था कि इस प्रॉपर्टी से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कितने रेंट पे चढ़ेगी, ये कितना खर्चा होगा, कितना नेट आपकी पॉकेट में आएगा। तो वो सारी चीज़ें, वो एक रेटिंग एजेंसी है, प्रोफेशनल बॉडी, जिसको स्टेट बैंक ने लाइसेंस किया हुआ है, वो हमारी प्रोजेक्शंस को, हमारी एजम्पशंस को क्वेश्चन करती है और उसकी बेसिस पे हमारी रेटिंग करती है। तो ये सारी एजेंसीज को अपॉइंट करना और इनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये रीट मैनेजमेंट का फंक्शन है। फिर जो प्रॉपर्टी हम एक्वायर कर लेते हैं वो ट्रस्टी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। सो ट्रस्टी होल्ड इन कस्टडी इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स, और उस प्रॉपर्टी के जो प्रोसीड्स हैं वो सारे फ्लो करते हैं टू दोज इन्वेस्टर्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जिस तरह एक कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसी तरह ये रीट भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। सो रोज के रोज हम देख सकते हैं कि इसके यूनिट की प्राइस क्या है, कितने यूनिट्स ट्रेड हुए हैं। किसी को बेचना हो तो वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेच सकता है, किसी को खरीदना हो तो वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीद सकता है। तो ये सर है पूरा इसकी जो टाइप एलैबोरेट सिस्टम। सॉरी, सॉरी 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 आप कंप्लीट करें। जी मैंने कह दिया, प्लीज कहिए। सर इसकी टाइप ऑफ रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादातर रेंटल इनकम ही होती है। अगर तो बनी बनाई प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी हुई है तो वो रेंटल इनकम होगी, और अगर हमने प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके बेचने का प्लान बनाया है तो वो सेल प्रोसीड से भी हमको प्रोसीड्स आएंगी। जो डॉल्मेन रीट है ये रेंटल रीट है। ठीक है। ये आगे मेरा ख्याल है इसमें आगे एक्सप्लेन हो रही है मजीद। जी यार। ये देखें, पाकिस्तान में जो जिस टाइप्स की हम रीड कर सकते हैं उनमें एक डेवलपमेंटल रीट है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और रिफर्बिशमेंट ऑफ रियल एस्टेट। और वो क्या करते हैं कि हमने प्लॉट लिया, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि हम अपार्टमेंट बना के बेचें, तो हम लोग सब पैसे को पूल करेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे, और उस प्लॉट के ऊपर फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको फाइनेंसिस चाहिए होंगे, उनका अरेंजमेंट करेंगे, और फिर जब वो बना के बेच देंगे तो जो प्रोसीड्स आएगी वो सारे इन्वेस्टर्स को एज पर देयर कंट्रीब्यूशन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये राइट। डेवलपमेंटल रीट है। इन रेंटल रीट हम बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको थोड़ा ठीक ठाक कराते हैं, और उसको फिर हम रेंटल इनकम उससे जनरेट करते हैं, जैसे डॉल्मेन सिटी रीट है। एक्चुअली दुनिया भर में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कहलाता है वो होता है बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदना। जो प्लॉट लेके डेवलपमेंट करने का बिजनेस है या बिल्ड करने का बिजनेस है, ये इंजीनियरिंग का काम है और इसमें प्रोजेक्ट रिस्क होता है।
ये रियल एस्टेट से रिलेटेड तो है, बट ये रियल एस्टेट का काम नहीं है, ये इंजीनियरिंग का काम है। इसमें आपको इसका इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाना है, BOQs देना है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, कॉन्ट्रैक्टर को हैंडल करना है, फिर आपने इसके यूनिट्स बना के बेचने हैं। वो एक अलग एक्टिविटी है। जो दुनिया जिस बिजनेस को समझती है, प्रॉपर्टी का बिजनेस, वो ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको थोड़ा रंग रोगन करवाया, कुछ ठीक ठीक किया, उसको रेंट पे दे दिया और फिर रेंटल इनकम को इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में क्योंकि डेवलपमेंट इज अ बिग बिजनेस, तो इसीलिए डेवलपमेंटल रीट्स भी अलाउड है। तो एक थर्ड टाइप की रीट है जो हाइब्रिड रीट कहलाती है। उसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जो पैसे पूल किए हैं, उस पैसे को हम बनी बनाई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे और उससे हम एक डेवलप करने वाली प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। सो दोनों एक्टिविटीज उसमें एट द सेम टाइम चल रही होंगी, तो वो हाइब्रिड रीट्स कहलाएंगी। सो तीनों तरह की रीट्स जो हैं वो पाकिस्तान में अलाउड है। सर हाइब्रिड कोई एक प्रोजेक्ट पे भी हो सकता है, या इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड बीट मीन्स कि दो टाइप के प्रोजेक्ट भी दे रहे होंगे उसमें, एक जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक उसका पार्ट है मे बी जिसमें हमें रेंटल रेंटल कंपोनेंट मिल रहा है। जी, यानी कि उसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे। एक वो प्रोजेक्ट होगा जो बन चुका है और उसको रेंट आउट हुआ हुआ है, वो भी उस रीट का पार्ट है। से के डॉलमेन के बराबर वाला प्लॉट खाली है, तो हमने एक फंड लॉन्च किया और हमने बोला हम डॉलमेन को खरीद के किराए पे चढ़ा देते हैं और बराबर वाले प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करके बेचेंगे। तो हम जो रीट फंड बनाएंगे वो हाइब्रिड कहलाएगा, बिकॉज उसमें रेंटल इनकम भी आ रही होगी और डेवलपमेंट की एक्टिविटी भी चल रही होगी। अच्छा सर, आप लोग जब पहले आपने एक लीड बनाया तो आपने डेवलपमेंट का सोचा था, तो आप लोगों ने नहीं, डेवलपमेंटल लीड ले जो लिया। डॉलमेन की रीट बनाई हमने, वो डॉलमेन बन चुका था, डॉलमेन रेंट आउट हो चुका था। फिर हम डॉलमेन वालों के पास गए, हमने बोला कि हम आपका मॉल और आपका हार्बर फ्रंट जिसमें ये एंग्रो वगैरह के ऑफिसेज हैं, ये जी जी। दो बिल्डिंग्स हम खरीदना चाहते हैं। तो हमारे कोई 6,000 इन्वेस्टर्स हैं, उनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, और हम ये 6,000 यूनिट होल्डर हैं। हम आपकी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो हमने उनसे एक रेट एग्री किया, फिर हमने वो फंड रेज किए और उनसे मॉल और उनका हार्बर फ्रंट वो हमने एक्वायर कर लिया। और वो रेंट आउट हुआ हुआ था, तो उसकी रेंटल इनकम जो है वो हमें एक्रू होना शुरू हो गई। उस रेंटल इनकम को हम अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो आगे आके डिटेल आएगी। जितना जितना जिसका शेयर होता है उतनी उतनी उसको रेंटल इनकम मिलती रहती है। तो ठीक है। ये वाला रेंटल रीट था, ये डॉलमेन रेंटल। वाला। और जी, जब आपने अभी अभी तक बात अभी करी कि तक कोई अगर आप डेवलपमेंटल रीट अभी तक नहीं आया है। हम लोग दो तीन रेंटल रीट्स पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो अगले 2 से 4 महीने में वो आएगा। तो फिर मैं आपसे उस वक्त उसकी डिटेल शेयर करूंगा। ओके सर। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं वही बात कि रेंट के चैलेंजेस क्या हैं। पाकिस्तान में रीट्स जो है, ये एक फॉर्मल तरीका है काम करने का, बिल्कुल प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज, ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ओपन। पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इट इज डोमिनेटेड बाय इनफॉर्मल सेक्टर। जितना भी रियल एस्टेट का काम है, वो डेवलपर हों, कॉन्ट्रैक्टर हों, सेल्स एजेंट्स हों, ब्रोकर्स हों, ये सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो उनको आदत नहीं है कि ये काम कैसे किया जाए कि जिसमें हर चीज़ डॉक्यूमेंट हो रही है, हर चीज़ डिस्क्लोज हो रही है। यानी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में लोग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और डॉक्यूमेंट पे शो करते हैं कि हमने 1 करोड़ की खरीदी है बिल्कुल या ऐसे ही। 2 करोड़ की खरीदी है। रीट में ये पॉसिबल नहीं है। रीट में आपने जितने की खरीदी है उतना ही बताना पड़ेगा। तो वो क्योंकि आपको वाइट इनकम यूज करनी पड़ेगी। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट जो है वो ब्लैक मनी का पार्किंग लॉट बन गया है। ये जो अर्न वो जो मनी होती है जिसमें टैक्स इवेड हुआ है या जिसमें कोई इलीगल सोर्स है, वो पार्क हो जाती है आके उसमें। दूसरा प्रॉब्लम जो रीट्स के पॉपुलर ना होने का है कि जो हमारी पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करती है। यानी रीट कैन नॉट वायलेट एनी लॉज, बिकॉज हमारे ऊपर SECP भी बैठा हुआ है। सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट को रीट मैनेजमेंट कंपनी देख रही है, फिर उसको रेटिंग एजेंसी देख रही है, फिर उसको ट्रस्टी देख रहा है, फिर उसको वैल्यूअर देख रहा है, फिर उसको SECP देख रहा है, फिर उसको अंडरराइटर देख रहा है, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज वाला देख रहा है। तो 6-7 लेवल ऑफ सुपरविजन है।
सो वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग। वो हमारी क्रेडिबिलिटी का, वो तमाम चीज़ों का, फिर हमें हर चीज़ अकाउंट फॉर करनी पड़ती है। सर इस तो वजह इसी से तो ज्यादातर लोग डिस्करेज नहीं हो रहे रीट की तरफ आने के लिए। जी, ये बात सही है, ज़्यादातर लोग इस वजह से डिस्करेज हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छा फिल्टर भी है कि जो लोग एथिकल और ट्रांसपेरेंट काम नहीं कर सकते, हम उसको रेट में लाना भी नहीं चाहते। तो अच्छा, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान में टैक्स रिजीम का है। पाकिस्तान में जो टैक्स देता है उसको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और जो नहीं देता है वो उसके मज़े ही मज़े हैं। तो इसलिए भी लोग रीट में नहीं आते हैं कि भाई हमको टैक्स देना पड़ेगा। अभी तो लोग जो रियल एस्टेट के बिजनेस में, वो लोग टैक्स देते ही नहीं है। यानी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं, अगर कि एक हमारे पास एक बिल्डर आए और बोला कि मैं इसका डेवलपमेंटल रीट करना चाहता हूँ, तो हमने उनके लिए पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाया और हमने बताया कि आपको पूरी ट्रांजैक्शन जब हम कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जो टैक्स आएगा वो 200 मिलियन का आएगा अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने तरीके से काम करूं तो मैं टोटल इसके अंदर 40 मिलियन का टैक्स पे करूंगा। तो आप मुझे एक प्रोजेक्ट में 160 मिलियन की हिट दे रहे हो, यानी 16 करोड़। 16 करोड़ रुपए तो एक बिल्डर के लिए बहुत हाँ सी बहुत रकम है, तो इसीलिए वो नहीं आएगा। इसी तरह दूसरा एक इशू क्या आता है कि हमें अप्रूवल लेने पड़ते हैं फ्रॉम एससीसीपी। ये एक चैलेंज होता है, बिकॉज जो कमर्शियल माइंड है वो अलग होता है और जो रेगुलेटर का माइंड है वो अलग होता है। जब हम गए थे डॉलमेन की रीट लेकर एससीसीपी के पास, और हमने उन्हें बताया कि हम 22 बिलियन रुपीस में ये प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, तो एससीसीपी ने बोला ओ 22 बिलियन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप क्यों एक्वायर करना चाहते हैं? हमने बताया कि इसमें से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना रेंट आएगा। बोला वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो वो जाके रेगुलेटर दुकानों के बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने नहीं खरीद रहे हैं। रेगुलेटर का माइंडसेट जो है वो एक अलग होता है, जो बिजनेस का माइंडसेट है वो अलग होता है। तो जो ये ट्रांजैक्शन लेवल अप्रूवल है, ये एक चैलेंज भी है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि फिर हमें वो चैलेंज करते हैं कि आपने जो एजम्पशन लिखी है इसकी क्या बेसिस है, लेकिन वो स्लो करती है प्रोसेस को ज़रा। अ, दूसरा इसमें प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि नैरो इन्वेस्टर बेस है कैपिटल मार्केट में। वो 2-2.5 लाख इन्वेस्टर हैं, तो हम लोगों ने 6,000 इन्वेस्टर्स जमा किए थे टोटल। तो वो 6,000 इन्वेस्टर्स को जमा करने में टाइम लगता है, कॉस्ट आती है, हर बैंक में जाना, हर इंश्योरेंस कंपनी में जाना, उनको एक्सप्लेन करना, ये सब करना, ये प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान का एक है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर और एक है पाकिस्तान का अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर। अब अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर कितना बड़ा है वो किसी का भी गेस होगा, बट वर्ल्ड बैंक वाले ने तुक्का मारा है कि ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ऑफिशियल सेगमेंट है। अब हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, बट वो बड़ा सेगमेंट है। आपको ये सुनकर हैरत होती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में आप अगर मकान खरीदें आज के दिन में, से कि आपने 10 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपको जो रेंट मिलेगा ना वो मिलेगा 2 लाख रुपए महीना, यानी 20-25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए साल का। उसका मतलब है कि आपने जो 10 करोड़ रुपए लगाए थे उस पर आपको यील्ड मिल रही है 3% की। और अगर आप गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लें तो उस पर आपको मिलेंगे 8% या 9%। पूरी दुनिया में जहां पर ये चोर बाजारी नहीं है, जहां पर ये टैक्स इवेजन नहीं है, वहां रेंटल यील्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज्यादा होती है, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं है और रेंट आउट करने में रिस्क है, तो उसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये गेम उल्टा है कि जो रिस्क फ्री एसेट है उसकी यील्ड ज्यादा है और जो रिस्की एसेट है उसकी यील्ड कम है। उसकी यील्ड कम इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो पार्क हो रही है रियल एस्टेट में, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। यानी हम लोगों ने एक स्टडी की थी तो पता लगा कि पिछले 20 साल में बहुत सी प्रॉपर्टियां जो हैं वो 20% पर एनम बढ़ी हैं, विच मीन्स के एवरी एवरी 3.5 साल में वो डबल हो गई हैं। सो वो आपको अगर यील्ड नहीं भी मिल रही तो आप ये काम कर लेते हैं। सो जो जो फॉर्मल सेक्टर है वो आ नहीं पाता, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो आ नहीं सकता। तो ये वाला एक बड़ा चैलेंज। आगे चलेंगे हम। बिल्कुल सर।
अब इसके जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है रीट्स का, मैं आपको अगर बक कर रहा हूँ तो मैं इसको स्पीड अप कर दूं, क्या आप नहीं ओके नहीं हैं? सर, बिल्कुल सब बहुत ज्यादा इसके साथ चल रहे हैं, आप बिल्कुल इसकी स्पीड पे रहें। रीट्स का जो बेनिफिट है सबसे बड़ा, कि इट इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड स्ट्रक्चर। रियल एस्टेट बिजनेस को रन करने में आपको, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट में आपको 3 चीजें कंट्रोल करनी है: कॉस्ट को, क्वालिटी को, टाइमलाइन को। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाती? इसलिए कि नंबर वन, वो टास्क आइडेंटिफाइड नहीं होते शुरू में, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। दूसरा, किसका क्या रोल है वो क्लियर नहीं होता, कोई रिपोर्ट नहीं बनती, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। हम लोग झक मारते हैं कि रिसोर्स लोड गैंट चार्ट हमको दें, मॉनिटरिंग स्केड्यूल दें, वो नहीं बनाते लोग, रिवाज नहीं है। तो रीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एससीसीपी ने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी है, किसको क्या करना है। और दूसरा हमें क्या चैलेंज आता है कि जब हम बड़ा प्रोजेक्ट करने निकलते हैं तो हमें इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, और पैसे अक्सर उन्हीं लोगों के पास होते हैं जिनके सर में कोई छेद होता है। यानी whoever, जनरली अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, उसके सर में कुछ होता है, यानी उसका एक खास तरीका होता है चीजों को देखने का। सो वो बोलता है कि मेरे तरीके से काम करो, और हाँ। दूसरा पार्टनर बोलता है मेरे तरीके से काम करो। तो हमें ये अंदाजा हुआ कि अगर कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन ना हो तो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में 7-8 से ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाते, बिकॉज वो कमरा भर जाता है, फिर सब अपनी अपनी बोल रहे होते हैं, पता नहीं लगता क्या कौन क्या कह रहा है। तो वो रीट ने वो उसको डिफाइन कर दिया है कि एक आदमी ड्राइविंग सीट पे होगा, उसकी ये रोल है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको जो इनपुट देनी है वो इस फोरम पे दे सकता है, इस पे नहीं दे सकता है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हमको एक आसानी होगी। दूसरा, रिस्क का जो डिसिप्लिन है और रिस्क मैनेजमेंट, वो बिल्कुल डिफाइन हो गया। अब यानी यहाँ पर, अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, तो हमने आर्किटेक्ट से कहा कि प्लीज इसकी सारी ड्राइंग्स दे दें, तो वो नहीं देता। आप खुद भी आर्किटेक्ट हैं, आप भी यही करती होंगी। तो आ रही है, बस चल पड़ा है, वो पहुंच रहा है, आप काम शुरू करें। तो उन्होंने बोला आप खड्डा तो खोदें ना, बस उसके बाद आ रही है। वो HVAC की ड्राइंग्स हमको नहीं दे रहे हैं, और हम बेसमेंट बनता जा रहा है, हम उनसे मांगे जा रहे हैं, बाबा आ रहा है आ रहा है। अब रीट में ये नहीं हो सकता, बिकॉज SCCP डंडा मारता है कि अगर नहीं है तो आपको जमा करवाना है। तो वो हमें, सारे जो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर है फॉर एग्जाम्पल, आपने, हमने अक्सर देखा है कि साइट पे जाते हैं, बोलते हैं किस ड्राइंग के तहत काम हो रहा है, तो ड्राइंग उसके पास नहीं होती। लेकिन अब यहाँ नहीं होती है तो SCCP वाला तस्वीर खींच के ले जाता है और बोलता है कि मैं लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। तो सबके सर पे हथौड़े पड़ रहे होते हैं, तो डिसिप्लिन आता है, तो हमको ये बेनिफिट होता है। नंबर 2, प्लानिंग नहीं होती है तो वेस्टेजेस होती हैं। तो क्योंकि प्लानिंग करनी है तो हमारी एफिशिएंसीज बेहतर हो जाती हैं। हमको प्रोक्योरमेंट स्केड्यूल जमा कराना पड़ता है। जब प्रोक्योरमेंट स्केड्यूल जमा कराते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ अब क्यों खरीद रहे हैं, और पहले क्यों नहीं खरीद रहे, और बाद में क्यों नहीं खरीद रहे। सो वो फोर्स्ड थिंकिंग है दैट गिव्स अस द डिसिप्लिन एंड द मैंडेट टू फोर्स योर रेगुलेशंस। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपको आज के दिन कराची में रिटेल का बिजनेस करना है तो आपको डॉलमेन प्लस लाना पड़ेगा। अगर आप डॉलमेन से छोटा मॉल लाएंगे तो आपको पब्लिक आपके पास नहीं आएगी। सो बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको पूल शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो आपको रीट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। फिर इससे आपकी सेलेबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब क्योंकि डॉलमेन रीट के स्ट्रक्चर में है तो सबको पता है कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हर चीज़ डिसिप्लिन का पार्ट है। यानी कि मैं आपसे एक प्रैक्टिकल चीज़ शेयर करूँ, पाकिस्तानी कल्चर का पार्ट है कि अगर आपका मॉल है और आप उसकी शॉप रेंट आउट कर रही हैं, तो मैं बिला वजह आपसे बोलूँगा कि सबा आपका रेंट अगर 100 रुपीज़ है तो यार मुझे 80 में दे देंगी आप? तो ऐसे ही, फिर क्यों दे देंगी 80 में, तो 100 का क्यों नहीं देंगी? लेकिन वो फिर मैं फ़ोन करवाऊंगा आपको अपने अंकल से कि वो भी आपको ये करें वो करें। लेकिन रीट में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमने जो रेट देना है वो SCCP को एक्सप्लेन करना है, वो ट्रस्टी को एक्सप्लेन करना है, वो रेटिंग एजेंसी को एक्सप्लेन करना है। तो हम बताते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है, जो बाजार का भाव है उसी पे काम होगा। तो ये बेनिफिट है। फिर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो मैंने बताया कि डॉलमेन की प्रॉपर्टी आज 22 अरब रुपए की है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर हमें आज सिर्फ 1 करोड़ रुपया चाहिए हो
तो हम 1 करोड़ रुपए के यूनिट्स बाजार में बेच के वो लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज अब ये प्रॉपर्टी टाइटल में नहीं है, अब ये प्रॉपर्टी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो उससे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इलिक्विड से लिक्विड हो गई है। अब जब भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हम यूनिट्स बाजार में बेच देते हैं, फिर जब पैसे आते हैं उसको दोबारा खरीद लेते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये अवेलेबल हो गया। हम आगे Right, sure. चलेंगे। अगेन ये वही बेनिफिट्स हैं, इम्प्रूव प्लानिंग है जो कि नहीं होती थी, मार्केट का कॉन्फिडेंस आता है, फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को एक एक जो है एक कंपनी है जोन्स लैंग लासाल JLL, आई एम श्योर आपने सुना होगा, एक इंटरनेशनल फर्म है, वो एक रेटिंग करती है रियल एस्टेट मार्केट्स की एवरी 2 इयर्स। तो पहले वो पाकिस्तान को रेट नहीं करती थी, बिकॉज इस मार्केट का पता नहीं था कि कौन सी प्राइस है क्या है, बिकॉज जैसे ही हमने रीट को लिस्ट किया तो पाकिस्तान की रेटिंग उन्होंने इम्प्रूव कर दी कि भाई ये जो है अब ये इसका एक मार्केट है, हमें पता है कि इस मॉल से कितना रेंट आया, कितनी दुकानें हैं, कितनी जगह है, क्या पर स्क्वायर फीट रेंट है, क्या उसकी वैल्यू है, कितने का शेयर ट्रेड हो रहा है, यूनिट ट्रेड हो रहा है, सो एंड सो फोर्थ। सो उससे फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ गया आने में। फिर हमने बात की थी कि सेविंग्स को बूस्ट करता है। पाकिस्तान में एक मसला है कि लोग सेव नहीं करते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सेविंग पे रिटर्न नहीं मिलता है। यानी आपने 1 लाख रुपए सेव किए, हर रोज अपने दिल को मारा कि ये जूता नहीं खरीदना, ये बैग नहीं खरीदना, ये कपड़ा नहीं खरीदना, अब 1 लाख रुपया बचाया, तो आपने 1 साल के बाद देखा तो आपको उसके 4,000 रुपए आपको आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और वो जो चीजें आपने नहीं खरीदी थी अब वो 1,10,000 रुपए की हो गई हैं, 1,10,000 की हो चुकी हैं। तो आपको लगता है कि इससे बेहतर था कि मैं वही खरीद लेता, यू नो, बिकॉज सेविंग पे रिटर्न नहीं है तो लोग सेव करने में उनको मजा नहीं आ रहा है। अगर यही आपको 1 लाख के 1,20,000 मिलेंगे तो आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, तो उससे सेविंग्स इंप्रूव होती है। फिर इसमें जो जैसे एक फाउंडेशन है बाबर अली साहब की, पैकेजेस ग्रुप वालों की, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फंड को डोनेट किया और बोला कि इस फंड से जो प्रोसीड्स आएंगी उसको हम टीचर्स ट्रेनिंग पे स्पेंड करेंगे। तो वो जो प्रोसीड आती थी उससे वो टीचर्स ट्रेनिंग को खर्च करते थे, लेकिन वो जो बॉन्ड की वैल्यू थी वो इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गई। तो पहले उस बॉन्ड से अगर 10 रुपए मिल रहे थे तो वो बाद में 5 रुपए मिलने लगे, और उधर टीचर की जो खर्चे थे वो बढ़ गए थे, तो उन्होंने फिर हमारे यूनिट्स खरीद लिए, बिकॉज जूं जूं किराया बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी इनकम बढ़ रही है, और वो इनकम जो है वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, तो वो इनकी जो फंड है वो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड हो गया। तो इसी तरह जो पेंशनर्स हैं, जो जिनको फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड कॉस्ट करनी है, वो बेनिफिट होता है। अगेन कैपिटल मार्केट में नया इंस्ट्रूमेंट आया, उसका बेनिफिट हुआ है। बाकी ये सब बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली आई थिंक बहुत सेफ है हमारे पास। अगर कोई इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में तो आजकल मतलब कराची के कॉन्टेक्स्ट में मुझे पता है आप ये किसी को भी ट्रस्ट कर सकते क्या हो। आई एम सेइंग कि कराची में आप ट्रस्ट किसको करेंगे? आई मीन आप किसी बड़े नाम के पास भी चले जाएं तो उनके भी प्रोजेक्ट 10-10 साल 20-20 साल डिले हो जाते हैं, और आपने जो भी प्लान किया होता है वो सारा प्लान फेल हो जाता है। उनको तो पूछने वाला सेफ्टी है, कोई नहीं, आपके पास कोई उससे पूछने शिकायत वाला नहीं है। क्या करें? ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो रीट तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आगे चलेंगे प्लीज। बिल्कुल ये आगे चलेंगे। ये रीट रेगुलेशन की मैंने समरी एक पेज पे बना दी है कि सर। आपको रीट फंड लॉन्च करने के लिए, उसको फंड भी बोलते हैं स्कीम भी बोलते हैं, उसको लॉन्च करने के लिए आपको एक रीट मैनेजमेंट कंपनी बनानी होती है। रीट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो लाइसेंस्ड एंटिटी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 50 मिलियन, या आपको SCCP से अप्रूवल चाहिए होता है। सारी चीज़ों का आपको SCCP से अप्रूवल चाहिए। मिनिमम 25% फंड जो है वो किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के पास होना चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट का कोई एंकर इन्वेस्टर हो, हम्म, ताकि वो ऐसा बेचारा लावारिस ना हो जाए कभी। और हम्म, रीट फंड जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना ज़रूरी है। हम्म, और ये जो हमने बात कर लिया कि इससे इन्फोर्स होता है डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल, और इसमें आपको ये सारे अपॉइंट करने होते हैं, ट्रस्टी, RMC, डेवलपमेंट एडवाइजर, प्रॉपर्टी मैनेजर, ऑडिटर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, रेटिंग एजेंसी, तमाम चीज़। तो ये समरी है हमारी रीट रेगुलेशंस की। आप आगे चलेंगे। बिल्कुल। ये प्रोसेस है
जब हम रीट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले ट्रस्ट डीड बनती है, जिसके तहत ट्रस्ट क्रिएट होता है, ट्रस्टी अपॉइंट होता है एससीसीपी के अप्रूवल से, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होती है, फिर रियल एस्टेट की ड्यू डिलिजेंस होती है, उसकी लीगल ड्यू डिलिजेंस होती है जो लॉयर करता है, उसकी एनओसीज अप्रूवल्स और कंफर्मेशन तमाम वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से दिया जाता है, फिर रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर बिजनेस प्लान होता है, फिर वैल्यूएशन होती है, फिर ये तमाम चीज़ें रीट मैनेजमेंट कंपनी ट्रस्टी को देती है, फिर ट्रस्टी उसको रिव्यू करके एससीसीपी को देता है। उसके अच्छा बाद सर, रियल सॉरी मैं सॉरी आपको कट कर रही हूँ। बच्चे ये पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि ये जो भी ट्रस्टीज हैं और जो रीट मैनेजमेंट कंपनी होगी, इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मैनेज वो सब होते हैं? इसमें शामिल होते हैं, पूरे अच्छा ठीक प्रोसेस है। के अंदर वो और शामिल होते हैं। वो और वो पहले से डिफाइंड है, डिसाइडेड होते हैं? वो डिफाइंड है कि जैसे रीट मैनेजमेंट की जो फीस है हम्म, रेंटल रीट में, वो 3% ऑफ ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। यानी अगर आपने 100 रुपए का किराया वसूला है और आपको किराया कलेक्ट करने में, प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में से कि हमारा ख्याल है कि ऑन एन एवरेज आपके 12 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो वो 88 रुपीज़ आपके हाथ में आते हैं। उस 88 रुपीज़ का 3% आप आरएमसी को देते हैं एज देयर फी। ठीक है, फाइन। तो 88 का 3 बनेगा, समझने के 2.4% और समथिंग, तो वो उनकी फीस है। और जो आप आरएमसी को देते हैं उसका 1/6 जो है वो ट्रस्टी को जाता है, तो वो एक फीस है। वो सब मिनिमल चार्जेस हैं। उसी में इस तरह फिर एससीसीपी की भी एक फीस है जो एनुअल जमा करानी होती है। इसी तरह रेटिंग एजेंसी की फीस है, ऑडिटर, वो सब है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल होता है। हमारा अपना ख्याल है कि अगर आप 100 रुपए का रेंट कमा लें तो ये सारे खर्चे जो हैं ये निकल बीस जाते रुपए ये 20 रुपए के अंदर अंदर हो जाते हैं, तो जो हैं। बाकी 80 रुपए बचते हैं वो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है सर कि ये जो भी हमें इनकम मिलती है वो मंथली बेसिस पे मिलती है या क्वार्टरली, ईयरली? हम लोग क्वार्टरली देते हैं। कानून में हर तरह के देने की इजाज़त है, चाहे तो मंथली दें चाहे तो, लेकिन इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी एक प्रोसेस होता है कि अकाउंट क्लोज होते हैं, ऑडिट का रिव्यू होता है, फिर बोर्ड मीटिंग होती है, फिर वो अनाउंसमेंट होती है, फिर बैंक को इंस्ट्रक्शन जाती है, तो क्योंकि एक हैसल होती है प्रोसेस से गुजरने की, इसीलिए हम लोग एवरी 3 मंथ्स की एक्टिविटी करते हैं, तो जो भी क्वार्टर में जमा हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ ये लोग पूछ रहे हैं वो ये कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, तो क्या रीट्स के लिए, क्या उनके यूनिट्स के लिए क्या टर्मिनोलॉजी है? यूनिट्स। यूनिट्स यूनिट्स जी होते, रीट्स यूनिट्स। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन है और उसके पास अच्छा खासा एक अमाउंट है, तो क्या वो रीट यूनिट बाय कर सकता है, लाइक एन इंडिविजुअल, या कोई कंपनी होना जरूरी है? नो नो, कोई भी बाय कर सकता है। कोई भी बाय कर सकता है। जी। ठीक है सर, आगे चलें। ठीक हो गया, हम बात कर रहे थे कि फिर आप वापस आएंगी ज़रा। अच्छा। हम ये प्रोसेस की बात कर रहे थे कि ड्यू डिलिजेंस के बाद रियल एस्टेट का अप्रूवल होता है एससीसीपी से, उसके बाद रीट स्कीम जो है वो उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है विद एससीसीपी, उसका एक प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर हम इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं कि अब आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, इसके अप्रूवल्स हमारे पास हैं, तो आप हमें अपने पैसे कंट्रीब्यूट करें। फिर वो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले में उनको हम यूनिट्स इशू कर देते हैं। तो एक तो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसेस, और एक होता है पब्लिक ऑफर का जिसमें हम आईपीओ करते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, एक अंडर राइटर्स अरेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल होता है, प्रोस्पेक्टस छपता है, अखबार में इश्तिहार आता है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब होता है। जब पैसे सारे पूल हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और उसके बाद फिर रीट का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। आगे चलेंगे। अगली स्लाइड में हमने बेसिकली इसी प्रोसेस को मज़ीद ब्रेक डाउन कर दिया है कि क्या क्या होता है और उस पर अंदाजन कितना टाइम लग रहा होता है। सो ये पूरा प्रोसेस जो है रीट के इंसेप्शन का से कराना, इसकी बर्थ से लेकर इसकी लिस्टिंग तक का, वो 4 to 5 मंथ्स का प्रोसेस होता है। आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, ये सब वही चीज़ें हैं। ठीक है जी। डॉल्मेन सिटी रीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आगे चलेंगे। ये जो डॉल्मेन की प्रॉपर्टी, जो डॉल्मेन सिटी रीट है, ये एक परपेचुअल रीट है, यानी इसकी कोई लिमिटेड लाइफ नहीं है। इसकी रेटिंग करवाना मस्ट है। ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, ये शरिया कंप्लायंट है, और ये रेंटल है। और जो प्रॉपर्टीज इसमें शामिल हैं उसमें डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन है। उसका लेटेबल एरिया जो है वो 550,000 स्क्वायर फीट है अप्रोक्सीमेटली। ये जो राइट साइड पे ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको एक येलो लाइन नज़र आ रही है,
इस प्रॉपर्टी में इस हमारा ये जो प्रोजेक्ट है डॉल्मेन सिटी इसको बोलते हैं, इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। 2 बड़े टावर हैं और 2 छोटे टावर हैं और एक मॉल है। सो जो रीट का पार्ट है वो ये हार्बर फ्रंट है जहाँ पे येलो लाइन जहाँ घूम रही है, Okay. और मॉल इसका पार्ट है। जो ऑफिस है इसमें वो तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, और जो मॉल है इसकी वो 5.5 लाख स्क्वायर फीट की है लेटेबल एरिया। तो टोटल लेटेबल एरिया अप्रोक्सीमेटली 800,000 स्क्वायर फीट है। इसका जो साइज था एट इंसेप्शन वो 22 बिलियन रुपीस था। इसका ट्रस्टी जो है वो सीडीसी है। इसकी जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए है। इसको वीआईएस ने इसको रेट किया है। और ये जो ट्रिपल ए के आगे ब्रैकेट में आरआर लिखा है, बिकॉज ये जो रेटिंग करती हैं एजेंसियां वो क्रेडिट रिस्क को असेस करती हैं कि लेंडर का रिस्क क्या है। अब इस केस में लेंडर नहीं है, इन्वेस्टर है, तो उसके लिहाज से उन्होंने रेटिंग की है, और वो ट्रिपल ए रेटेड विच इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग। और ऑक्यूपेंसी जो है डॉल्मेन मॉल की वो अप्रोक्सीमेटली 98% है। हार्बर फ्रंट की 95% है। और इसकी वैल्यूएशन हम एवरी 6 मंथ्स कराते हैं, वो लिखी हुई है। मार्केट प्राइस लिखी हुई है। डिविडेंड ईल्ड नीचे लिखी हुई है। आप देखें कि हर साल इसकी डिविडेंड ईल्ड जो है 16, 17, 18, 19 वो बढ़ रही है। 2020 में आके उसमें डिप आई है, बिकॉज मार्च में कोविड हिट हो गया था, और उसकी वजह से हमको कंसेशन देने पड़े थे टू आवर टेनेंट्स। मॉल बंद हो गया था कुछ अरसे के लिए, फिर खुला था तो रिस्ट्रिक्शन के साथ खुला था, फुटफॉल वगैरह नहीं था, उसकी वजह से ये कम हो गया। तो ये आगे चलेंगे। ये थैंक यू है, और आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। थैंक यू के बाद जो है एनेक्स्चर में मैंने वो सारे जो डिटेल्स हैं रेगुलेशंस की वो डाल दी हैं कि रीट मैनेजमेंट कंपनी को क्या करना है। हमारा फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का, कि हम लोग डिफॉल्टर नहीं हैं, हम लोग क्वालिफाइड हैं, हम लोग एक्सपीरियंस हैं, सो एंड सो फोर्थ। ये तमाम चीज़ें होती हैं। आगे चलेंगे। फिर रीट स्कीम की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। आगे चलिएगा। ये रीट स्कीम की रिस्ट्रिक्शंस हैं। आगे चलें। इंश्योरेंस कराना प्रॉपर्टी की मस्ट होती है। पाकिस्तान में इंश्योरेंस कराने का रवाज नहीं है, आयतल कुर्सी पढ़ने का रवाज है, पर हम कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ें लेकिन साथ में ये भी करवाइए। और आगे चलेंगे। बोरोइंग पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है रेगुलेशंस में। और आगे चलेंगे। एज आई सेड के ऑल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। डेवलपमेंटल रीट स्कीम की डेफिनेशन डिफाइंड है, and हर चीज़ डिफाइन की हुई है। और आगे चलते हैं। ये तो अब आपके पास आई गई है, आप जब भी चाहें इसको रेफर कर सकते हैं। और आगे चलिए। ये वैल्यूएशन का प्रोसेस है। आपको 2 सेपरेट वैल्यूअर रखने होते हैं। फिर उसकी रीट स्कीम होती है, फिर एक स्केड्यूल दिया हुआ है जिसके मुताबिक इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। और उसमें कॉस्ट अप्रोच को, सेल्स कंपैरिजन अप्रोच और इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच को यूज़ करना है। वैल्यूअर जो है वो रीट यूनिट्स नहीं खरीद सकता है, और एक वैल्यूअर सिर्फ 3 साल के लिए अप्लाई होगा, उसके बाद उसको चेंज करना ज़रूरी है। आगे चलेंगे। अब फिर ये वैल्यूअर का क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि वो पी कैट पी और या पीईसी का मेंबर हो वगैरह वगैरह वगैरह, पीबीएस से अप्रूव्ड हो। आगे चलेंगे। ये आरएमसी की ऑब्लिगेशंस हैं। ये मैं अपने बोर्ड को पढ़ के बताता हूँ कि देखें कितनी जिम्मेदारी है, ताकि मेरी तनख्वाह वो ज़्यादा करें। आगे चलेंगे हम। आगे चलिएगा। और ये बात ज़्यादा मैंने ओवर स्टेट कर दिया होगा अपनी जॉब को। ये जो है ट्रस्टी का वो है, कि आपको स्केड्यूल बैंक हो सकते हैं, एनबीएफसी हो सकते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी हो सकती है। बैंक होगा तो वो डबल ए रेटेड होना चाहिए। आगे चलिए। फिर इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिक्र है कि ट्रस्टी को क्या क्या करना है। काफ़ी उनकी जिम्मेदारी है इसके अंदर। आगे चलेंगे। The students कह रहे हैं थोड़ा valuer को explain करते हैं. So what do you mean by a valuer?
वैल्यूअर वापस जाएंगे अगर हम वैल्यूअर वाली स्लाइड पे, तो वैल्यूएशन जो है वापस चलेंगे, ये प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं जो वैल्यूएशन का काम करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड होता है हमको बैंकिंग के बिजनेस में। जब आप बोरो करने जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि हमको एसेट चाहिए एज कोलेट्रल, उन कोलेट्रल का वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यूअर उसको असेस करता है। सो वो वैल्यूअर्स जो हैं वो कौन हो सकते हैं, तो पाकिस्तान में एक एसोसिएशन है विच इज़ कॉल्ड पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन, पीबीए। वो उनका एक बना हुआ है शेड्यूल कि आप उसमें अपॉइंट होते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप अगली स्लाइड पे आके देखेंगी तो उसमें है कि आप जी, कि आप मेंबर हों पीईसी के, या आप मेंबर हों पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स के, और आपके पास 3 इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट होने चाहिए, और आप पैनल 1 और पैनल 2 पे हो सकते हैं। वो पैनल्स बने हुए हैं कि आप मशीनरी को, लैंड को, किसको आप वैल्यू कर सकते हैं। वो रेगुलेशन है जो उसको डिफाइन कर रही है उन फर्म्स को। आप वापस आएंगे अगर एक स्लाइड पीछे, तो इसमें जो इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स कमेटी है, आईवीएससी, उसकी गाइडलाइंस हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं। वो उसमें 3 अप्रोचेस देते हैं कि आप जब किसी एसेट को वैल्यू करें तो आप 3 अप्रोचेस यूज करें। वन इज द कॉस्ट अप्रोच, इफ वी रिक्रिएट दिस एसेट टुडे, हाउ मच विल इट कॉस्ट, तो वो उनको बताना है। दूसरा, अगर इस एसेट को हम बेच दें बाजार में तो इसकी क्या वैल्यू है। तीसरा है कि इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच क्या है। सो हर टाइप के एसेट के लिए, जैसे रेंटल में जो रेलेवेंट अप्रोच है वो है इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच। जैसे थंब रूल क्या है कराची में इन्वेस्ट करने का, कि अगर आपने ऑफिस की बिल्डिंग खरीदनी है, अगर 100 रुपए की बिल्डिंग है तो आपको 6 रुपए उसका रेंट आना चाहिए। ये एक थंब रूल है, बाजार में चल रहा है। इसका मतलब है कि इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच है, और इसमें आप 6% पे उसको कैपिटलाइज करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसमें 1 मिलियन का रेंट आ रहा है, तो इसकी तो वैल्यू क्या होगी। तो उसी आप रेशो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.06 करेंगे, बोलेंगे ये बस ये वैल्यू। तो बस ये इनकम कैपिटलाइज, रेंटल प्रॉपर्टीज में इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच ज़्यादा यूज होती है। लेकिन हमें वो ये भी बताते हैं कि आज अगर आप डॉल्मेन को रिक्रिएट करेंगे तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। फिर यही चीज़ हम यूज़ करते हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए, कि हम इसकी इंश्योरेंस कितने की कराएं, कितना प्रीमियम पे करें, सो एंड सो फोर्थ। तो ये बेसिकली वैल्यूएशन का काम है। सर, स्टूडेंट्स का सवाल है कि कोई प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम रीड यूनिट्स को खरीद सकें? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ओके। और उसके जिस लिए तरह आप कोई भी शेयर खरीदते हैं उसी तरह आप यूनिट खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ओके, तो वहाँ जाके हम ये चीज़ें इंफॉर्मेशन जो हमें मिल सकती है, अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन चाहें, और हम वहीं से खरीद भी सकते हैं। जी जी, अपने ब्रोकर को बस बोले कि मुझे यूनिट खरीद दो, वो खरीद देगा। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है? कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं, बस आपका जिस तरह से स्टॉक मार्केट का शेयर खरीदने की है, अगर आपका ब्रोकर के पास अकाउंट है, आपने बस उसको बोलना है कि मेरे लिए, बाकी जिस तरह बाकी शेयर्स का बोलते हैं उसी तरह रीट का बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरीका है। ओके सर, एक और सवाल आया है, एंड दैट इज कि व्हाट एसिड टेस्ट रेशियो ऑफ डॉल्मेन ब्रीड इज मेंटेनिंग? क्या बोले? एसिड टेस्ट रेशियो डॉल्मेन ब्रीड इज मेंटेनिंग, व्हाट व्हाट एसिड इज टेस्ट? व्हाट एसिड टेस्ट, व्हाट इज एसिड टेस्ट रेशियो, हमें नहीं पता है। ओके, व्हाट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आर रिक्वायर्ड टू बी हाँ मेंटेन्ड? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि एसिड टेस्ट रेशियो किसको बोलते हैं। ये लोग ये तो पूछें जिसने भी ये सवाल पूछा है, मैं वो पूछती हूँ। क्या डिफाइन करते हैं। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज है, क्या बोलते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपने पूछा कि डेट इक्विटी क्या है, जो रीट में जो डॉल्मेन सिटी रीट है, इसमें जीरो डेट है, इसमें हमने डेट नहीं लिया हुआ है, इट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस। अच्छा, एंड दे आर आस्किंग व्हाट आर मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट? कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि रीट को लिस्ट होना होता है तो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जिसका मतलब है कि कम से कम रीट फंड जो है वो 250 मिलियन का होना चाहिए, 250 मिलियन। वो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वही रीट फंड की रिक्वायरमेंट Another question, where he's asking why there is so much difference in net asset value and market price. है। उसकी वजह ये है कि जब हमने
रीट को लॉन्च किया था तो हम उसकी वैल्यू डिटरमिन कैसे करते हैं? हमने उस वक्त देखा कि इसका रेंट आता है 2.2 बिलियन रुपीस। उस वक्त पाकिस्तान में जो 10 ईयर पीआईबी था उसकी यील्ड थी 9%। तो हमने इन्वेस्टर से पूछा कि वो किस रेट पे यूनिट खरीदेंगे, तो उन्होंने बताया कि अगर हम रिस्क फ्री एसेट खरीदते हैं तो हमको 9% रीट मिलती है, तो अगर हम आपका एसेट खरीदेंगे जिसमें रिस्क है तो हम 10% पे खरीदेंगे। तो हमने अपने रेंटल इनकम को 10% से डिवाइड किया और उसका वैल्यू बन गया 22 बिलियन। राइट। आज भी हमारे जो इन्वेस्टर्स का बड़ा पार्ट है वो फॉर्मल सेक्टर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर, जब वैल्यूअर इसको वैल्यू करता है तो वो बोलता है कि मार्केट में रेंटल यील्ड जो एक्सपेक्टेड है वो 7% है, वो 10% नहीं है। आप उसको 7% पे कैपिटलाइज करें। जब हम 7% पे कैपिटलाइज करते हैं तो इसकी वैल्यू चली जाती है 50 बिलियन पे। लेकिन अगर आप 50 बिलियन का करेंगे तो आपको 7% यील्ड मिलेगी। ओके। लेकिन जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हैं, वो बोलते हैं कि हमको तो रिस्क फ्री एसेट से ज़्यादा की यील्ड चाहिए, तो वो मांग रहे हैं 10% आज के दिन भी। तो इसीलिए आज जब आपने देखा कि हमने कितना डिविडेंड दिया, वो दिया 12.5%। तो वो कह रहे हैं बस हमको कम से कम 1 रुपी तो चाहिए, तो वो हमारी रेंटल इनकम को 10% से डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए वो 11 रुपीज़ का है। सो जो वैल्यूअर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 23 रुपीज़, जो मार्केट का इन्वेस्टर है वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 11 रुपीज़। अब वो क्यों 11 बोल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह जो आपने कही थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि रीट क्या है। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर ये समझ रहे हैं कि ये एक एसेट है जिसमें किराया आता है बस, और हमारा इस प्रॉपर्टी पे कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो रीट यूनिट होल्डर्स हैं वो इस प्रॉपर्टी के प्रो रेटा ओनर्स हैं, तो इसकी वही वैल्यू होनी चाहिए जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। लेकिन ये बात हम अपने इन्वेस्टर्स को नहीं समझा पा रहे। और हम इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं समझा पा रहे? इसलिए कि हम मोटिवेटेड नहीं है। क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हम क्यों दूसरों को समझाएं कि वो ये खरीदें जब हमने बेचना ही नहीं है। तो हम बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खरीदने में तो इसलिए। ये मार्केट एक्सपेंड कैसे करेगी इस तरह अगर हम रहे तो? जी, ये जब तक हम लोग सुस्ती दिखाएंगे ये एक्सपेंड नहीं करेगी। इसके लिए अच्छा हमको सर, मेहनत वो करनी आप पड़ेगी। वो आपके एसेट टेस्ट रेशियो का उसने रिस्पॉन्स किया है, ही सेइंग शॉर्ट टर्म एसेट्स वर्सेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इज कॉल्ड एसेट टेस्टिंग। हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं कि जो रेंट आ रहा होता है वो बस वो कैश में पड़ा होता है। तो इसीलिए हम क्योंकि हमारी कोई वो बोरोइंग नहीं है, इसीलिए हमारी कोई लायबिलिटी भी नहीं है। तो सर इसीलिए लास्टली आई थिंक सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे दे वर सो मोटिवेटेड, क्योंकि हम अक्सर क्लास में यही डिस्कस करते हैं कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से अपनी जो ट्राइंगल है आपका कॉस्ट टाइम और उसका स्केड्यूल का उसको कैसे लेके चलना है डिस्कस करते हैं। लेकिन इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। जिस तरह हमने आपसे भी अपने बात की, यस, बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही होती है, रिस्क असेसमेंट नहीं हो रही होती है। आपने कहा जिस तरह के आर्किटेक्ट टाइम की ड्राइंग्स नहीं देते, हाँ, साइट पे चीजें नहीं मौजूद होती और काम हो जाता है। बगैर ड्राइंग्स के इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन उससे स्टार्ट जो हो पूछ जाती है। रहा था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, मैं बोला इडियट्स बहुत हैं। यानी यहाँ बिल्डिंग साइट पे इंजीनियर एक बात कह रहा हो और एक ठेकेदार एक बात कह रहा हो, तो बोलते हैं कि ठेकेदार की सुन लो, इसको ज्यादा पता है। यानी कि एग्जैक्टली ये पाकिस्तान में उल्टा मुल्क है। ये तो हमसे होता नहीं है, वरना हम लोग सर के बल चल रहे हो और हमारे पाँव ऊपर हो। यानी हर काम उल्टा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने एक चीज सोची, जैसे आप बता रहे थे कि हर चीज एक प्रॉपर चैनल से चलती है, तो ऑब्वियसली सारी मनी ट्रांजैक्शन भी थ्रू बैंक होगी। तो हर चीज जब अब तो इतनी ट्रांसपेरेंट तो हमारे लोग चाहते ही नहीं है कि हो, कि हर बंदा टैक्स बचा रहा होता है, दिखाई नहीं सकता कि तो इतनी इनकम ये है। बात आगे पूरी दुनिया में शायद ऐसे ही होता होगा। इकोनॉमीज में जब हम लोग स्टॉक मार्केट में थे तो स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों ने बोला कि कॉर्पोरेटाइज कर लो खुद को। जिन्होंने कॉर्पोरेटाइज किया वो बड़े हो गए। जहांगीर सिद्दीकी, आरिफ हबीब, ए के डी जी बड़े हो। जिन्होंने नहीं किया वो भूल गए लोग, उनके वो बंद होना शुरू हो गया। जो कॉर्पोरेटाइज करेंगे वो ही सरवाइव करेंगे। क्योंकि ये अब नहीं,
रियल एस्टेट में ये नहीं चलेगा। जब आप छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, 1000 गज के ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यू कैन अफोर्ड टू बी देयर। और जब आप, अब हम लोग डोरमेंट बना रहे हैं लाहौर में, 1000 वर्कर वहाँ काम कर रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। अगर कोई सिस्टम नहीं हो तो जिन थोड़ी खड़ा कर सकते हैं वहाँ पे जाके जो उसको देखे। वो सिस्टम है, रिपोर्ट आती है कि क्या हुआ, प्रोग्रेस कैसे देखनी है, रिपोर्ट क्या नहीं है, गैंट चार्ट क्या बोल रहा है। अब यहाँ आप किसी को बोलें कि गैंट चार्ट बनाओ, तो बोलते हैं कि आप ऐसे पागल की बात कर रहे हैं, बोलेंगे गैंट चार्ट भी बना देते हैं सर, उसको फॉलो कौन करता है? फॉलो नहीं करते हैं एग्जैक्टली। बहुत इंटरेस्टिंग, वो गैंट रिसोर्स की चार्ट बन जाता planning नहीं है, कोई रिसोर्स की प्लानिंग नहीं है। तो अभी मैं यहाँ कराची में एक बिल्डिंग बन रही थी, वो बनते बनते रुक गई। वो क्यों रुक गई? वो बोला कि हम भूल गए, वो कुछ एक स्पेशल स्टील ऑर्डर करना था, वो भूल गए। वो 2 महीने खड़ी है, और वो डिले हो गया तो हो गया। वो कौन सा किसी को जवाब देही है? है। तो एग्जैक्टली, रीट में आपने डिले कॉम्पिटिशन। किया तो वो इतने खत आते हैं, ये करो भाई इसको। तो तो आई थिंक सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो भी ऐसा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये कहूँगी कि जी जो यार, आप चाहते हैं कि वो चैनल से चाहते हो। हैं, हम भी इसको एक्सप्लेन नहीं करते। यानी अब हमारे अपने ग्रुप में मैं आपको बताऊं कि हमने कभी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। अभी जब कोविड हुआ तो लोगों के पास टाइम आया, तो हमारी सीनियर मैनेजमेंट बैठी कि इस पे है क्या। जब सबको समझ में आया तो हमने ये फैसला किया कि भाई हम कोई भी रियल एस्टेट का काम करेंगे तो रीट के स्ट्रक्चर में करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इतना अच्छा है ये। बिल्कुल सर, हम तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे तो जब मैंने प्रेजेंटेशन पढ़ी थी तो मुझे उस वक्त ही काफ़ी इंटरेस्ट इसमें जनरेट हो गया था, लेकिन तमाम ऑडियंस इज अकॉर्डिंग कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो और मच, सर थैंक यू। बस आई थिंक कोई और भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से रीड के लिए मजीद इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो। अभी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक ही या मैनेजमेंट साइंसेस ही को शेयर हुई, आई थिंक लोकल पब्लिक तक भी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। ज़रूर इंशाल्लाह हम इसको प्रमोट करेंगे, आप हमें गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो और मच। अभी तो कोविड में है, यानी कि ये साइकिल वो तो निकल, मुलाकात भी रखते हैं, मिलते हैं। और बिल्कुल हम जो सर। प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अभी हम लोग डेवलपमेंटल रीट्स पे काम कर रहे हैं 2-3 पे, वो भी फिर हम आपकी टीम से शेयर करेंगे, और आपकी भी बिल्कुल गाइडेंस लेंगे कि आप कैसे उसको देख सर, रही हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह गॉड हाफ़िज़। ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।